today we are going to cover the fundamental unit of life in one go. I will be covering each and every important thing in this chapter related to your exam point of view. So the first thing comes first. So what is cytology? Cytology is the study of a cell. So cytology is the study of a form, structure and the composition of a cell. Now what is cell? So cell is the basic structural and the functional unit of a life. हम cell को building block of a life भी कहते हैं. जैसे brick is a building block of building. Similarly cell is the building block of life. Cell is the fundamental unit of life and cell is the basic structural and the functional unit of life as well. So this is a very important definition for a cell. So cell is the basic structural and the functional unit of life. Now when I talk about the discovery of cell, so the cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. He took a bark of a tree and then he observed a thin slice of the cork. So what he observed a honeycomb like structure and he called that छोटे छोटे blocks like this as a cell. तो उन्होंने छोटे छोटे boxes को क्या बोल दिया cell. Cell का Latin word में क्या meaning होता है a little room. Very important. ठीक है. So now let's talk about more the discovery of cell. Now so the Robert Hooke was the first scientist who discovered the cell. Leeuwenhoek एक्चुअली टोल्ड कि सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है क्योंकि उन्होंने यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा इन द पाउंड वाटर. सो ही टोल्ड दैट इफ फ्री लिविंग सेल आर आल्सो देयर. सो बेसिकली सेल इज अ लिविंग थिंग. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. शेल्डन एंड शोवान ने सेल थ्योरी दी थी और उन्होंने बोला था कि प्लांट हो या एनिमल हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ पुरकिंजी उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के लिए डिस्कवर किया था. फिरकाउ ने जो सेल थ्योरी है उसे एक्सपैंड किया था और बोला था कि जो भी न्यू सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनकर आता है. अब नॉल एंड रुस्का उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था जिसकी वजह से सेल के बारे में स्टडी और इजी हो गई. ठीक है, तो हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया because of Noll and Ruska. So the important scientist name which you all have to learn is Robert Brown. Okay, sorry. So the important names which you all have to learn is Robert Brown, Robert Hooke, and Sheldon and Chauvin. Now let's talk about the characteristics of the cell. So there are many type of cell depending upon the size, shape and their function, but every cell has some basic characteristics which is common to all. So let's study them. So they have the ability to replicate, they have hereditary information in the DNA. ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए होता है जिसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है. अब वो कैसा ही सेल हो, लाइक depending on the function or the prokaryotic or eukaryotic, any type of cell, it has hereditary information, it has ability to replicate, it perform the life sustaining activity. obviously एक living thing है तो ये life sustaining activities खुद से perform कर सकता है. and ये chemical composition और metabolic activities भी similar kind of ही show करता है भले ही कितने ही cell different क्यों ना हो. Now let's talk about the organism, different organism depending upon the cellular composition. अब कितने सेल से बना है उसके बेसिस में हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज जिनमें सिर्फ एक सेल होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल मिलकर एक बॉडी पार्ट्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट. तो बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू एक ऑर्गन, ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरी बॉडी बनाते हैं. ठीक है, सो दैट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि उसके नाम से ही काफ़ी क्लियर हो रहा है. द सेकेंड डिफरेंस इज कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता क्योंकि वहाँ एक ही तो सेल है, तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ से होगा. डिवीजन ऑफ लेबर तो वहाँ होगा ना जहाँ एक से ज़्यादा सेल होंगे. सपोज अगर आप घर में एक ही जने हो तो आप ही को ही सारे काम करने पड़ेंगे ना, लेकिन अगर आपके घर में आप 3 जने हो या 4 जने हो तो यू कैन डिवाइड योर वर्क.
सिमिलरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेचारा एक ही तो है, तो उसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। बट एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में cells are specialized to perform different function and there is division of labor within the cells। ठीक है। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है, दैट्स थर्ड डिफरेंस है, दैट हैज टू बी एग्जाम्पल डिफरेंस। जब भी हम लिखते हैं ना तो उनमें ये एग्जाम्पल्स वाला पॉइंट आता ही है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस एक्सेट्रा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस जायगोट, आप इसे याद करो। तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये भी अपनी जो लाइफ है ना, वो ये एक ही सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, फिर वो सेल एक में, वो दो, तीन में, तीन, चार में, ऐसे मल्टीपल सेल क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक ही सेल से होती है। सो दैट एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट लाइफ एज अ सिंगल सेल, और उस पहले सेल को हम बोलते हैं जायगोट, जो कि डिवाइड होता है और बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट होता है। ओके ये वाला तो बहुत ही सिंपल सा नोट है, दिस इज जस्ट अ ग्रैटिट्यूड कि अगर मैग्नीफाइंग लेंस नहीं होते तो हम ये जो डिस्कवरी है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की वो पॉसिबल नहीं हो पाती। सो दिस इज नथिंग टू लर्न, बट ये जायगोट बहुत इंपॉर्टेंट था। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में एक तो डेफिनेशन, दूसरा एग्जाम्पल एंड तीसरा डिविजन ऑफ लेबर। नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल। उसके पहले माइक्रोस्कोप के बारे में जान लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर मैग्नीफाइंग लेंसेज नहीं होते तो हम इन सेल को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अब ये मैग्नीफाइंग लेंस कहाँ यूज होता है? ये होता है माइक्रोस्कोप में। सो माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाउंड और एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पावर का होता है, वो ज़्यादा अफेक्टिव होता है। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसे मैं लाइट माइक्रोस्कोप भी कहती हूँ, क्योंकि वो सनलाइट को यूज़ करता है फॉर द इल्यूमिनेशन। अब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो तो वो 300 से 1500 टाइम जूम इन हो जाता है और आप उसे प्रॉपरली स्टडी कर पाते हो ना। शेप ऑफ द सेल की बात करें तो अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप हो सकती है। कुछ सेल तो ऐसे भी होते हैं जिनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है, इरेगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल WBC एंड अमीबा चेंज शेप, सो दे हैव चेंजिंग शेप, इरेगुलर शेप के होते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड शेप सेल होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिप्टिकल होता है फैट सेल का, स्पेरिकल इज फॉर द ओवम, स्पाइंडल शेप्ड होता है स्मूथ मसल सेल, थ्रेड लाइक होता है स्पर्म, डिस्कोइडल होता है RBC, इलोंगेटेड होता है नर्व। तो अब इसमें सबसे इजी कौन सा है? नर्व सेल। सॉरी, नर्व सेल। दिस नर्व सेल इज elongated, sperm cell is thread like, and this ovum is spherical। तो ये तीन तो आप लर्न कर ही लेना for giving example and writing examples in your exam। Now when I talk about the size of the cell, so this 2-3 line are completely informative। So साइज ऑफ द सेल भी सेम नहीं होते, अलग अलग सेल्स की अलग अलग साइज होती है। तो जो स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, जो लार्जेस्ट सेल है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, और जो लॉन्गेस्ट सेल है एक ह्यूमन बॉडी में वो नर्व सेल है। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। दैट्स ऑल। सो स्मॉलेस्ट सेल इज mycoplasma and the largest cell is the ostrich, longest cell is the nerve cell। So these three information you have to learn। एंड WBC एंड अमीबा की इरेगुलर शेप होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन वी हैव इन दिस पेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल। मैं फंक्शन ऑफ सेल के पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल होती हैं। अब सेल ऑर्गेनेल आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ द सेल विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। तो सेल के अंदर एक डिवीजन ऑफ लेबर है। फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट बनाने की मशीन है या फिर फैक्ट्री है, अब उसमें मशीन्स हैं, लेबर है, कैबिनेट है, तो अलग 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 चीज़ें हैं। तो वो मशीन, ह्यूमंस, कैबिनेट, वो अलग अलग आप मान लो एक तरीके से सेल ऑर्गेनेल है जो कि स्पेसिफाइड है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। और वो पूरी की पूरी चॉकलेट फैक्ट्री क्या है? एक सेल है। तो उस चॉकलेट फैक्ट्री के फंक्शन से पहले आपको ये जानना इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है।
जो कौन करता है, किसके बीच में होता है, सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में. So that's all in this complete paragraph. I'm gonna read you this para. So, multicellular organism like human beings perform these functions by division of labor. Different part of human body are specialized to perform the different function, such as heart is made to pump, stomach to digest, kidney to filter. Similarly, division of labor is also seen within a single cell. Now, so there are specific components which are cell organelle and they are able to perform special function. ठीक है. एंड अब इसका एक एग्जाम्पल भी है, माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ द सेल. तो बेसिकली दो टाइप के सेल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियस. सो कैरोटिक मतलब न्यूक्लियस एंड प्रो मतलब प्रिमिटिव. तो ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है, प्रिमिटिव है, उन्हें मैं कहूँगी प्रोकैरियोटिक सेल. तो अब इसमें जो न्यूक्लियस है उसके पास ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. तो देख लो ये बहुत ही इरेगुलर शेप का है. तो उसे मैं न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियोइड कहूँगी. तो इस रीजन को मैं न्यूक्लियस नहीं कहूँगी, इसे मैं बोलूँगी न्यूक्लियोइड. ठीक है. सो ये पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को जानना है कि इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए मैं न्यूक्लियर रीजन को कहती हूँ न्यूक्लियोइड. जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते. ठीक है. सो दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. अब ये एक एग्जाम्पल है सिंपल सा, वो आप पढ़ लेना. ये एक प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा दिखता है. अब इसमें देखो एक्चुअली ये जो पार्ट है ये फ्लैचुला कहलाता है. बैक्टीरियम फ्लैचुलम. दिस इज फॉर द मूवमेंट. दिस इज न्यूक्लियोइड, not a nucleus because it don't have a nuclear membrane. And that's all. These are the most important difference between these were the most important point for a prokaryotic cell. Now come to the eukaryotic cell. So you मतलब true and karyotic is nucleus. तो ऐसे सेल जिनके पास प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस होता है उन्हें मैं कहती हूँ यूकैरियोटिक सेल. इनके पास वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास उनके खुद के मेम्ब्रेन भी होते हैं. ठीक है. एंड जो यूकैरियोटिक सेल है वो 10 टाइम्स बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से ऑब्वियसली, क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल है, उनके पास मेम्ब्रेन भी है. तो जब प्रॉपरली दे आर बिगर. प्रोकैरियोटिक्स में तो इतने ऑर्गेनेल ही नहीं होते हैं. And they have more complex DNA and their organelle are enabled to do more complex job. अब ये बहुत ही important है, the difference between a prokaryotic and eukaryotic cell. और ये बहुत easy भी है. Like आप ये 8 point याद कर लो. तो साइज ऑब्वियसली यूकैरियोटिक्स का ज़्यादा होता है. अब आप एन से याद कर लो. तो एन से एक तो है न्यूक्लियर रीजन, एक है न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक में कहलाता है न्यूक्लियोइड और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियोलस कहूँ तो प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है. अब आप सी वाले पकड़ लो. तो सी, एन से 2 पॉइंट है, सी से 3 पॉइंट है. एक है क्रोमोसोम, एक है सेंट्रोइड और एक है सेल डिवीजन. तो क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक्स में सिर्फ एक होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं. सेंट्रोइड होता ही नहीं है, इसमें होता है प्लांट सेल में. अब यूकैरियोटिक सेल प्लांट्स में भी होता है और एनिमल में भी होता है. तो ये जो सेंट्रोइड होना है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है. तो बेसिकली ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. और मैं सेल डिवीजन की बात करूं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये सिंपली बाइनरी फिजन या बडिंग से रिप्रोडक्शन कर देता है. लेकिन यूकैरियोटिक सेल दो टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, एक मिटोटिक और एक मियोटिक. आप इसको अभी के लिए लर्न कर लो. ठीक है. So these were the 8 differences between a eukaryotic and prokaryotic cell. If I repeat the features, what were they? पहला था साइज, फिर 2 पॉइंट थे एन से, एक है न्यूक्लियर रीजन, एक है न्यूक्लियोलस. 3 पॉइंट हो गए. अब 3 पॉइंट थे सी से, क्रोमोसोम, सेंट्रोइड, सेल डिवीजन. लास्ट जो पॉइंट था वो था ऑर्गेनिजम्स.
and the membrane bound cell organelle. Obviously प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, यूकैरियोट्स में होता है. और ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी हम डिफरेंस लिखेंगे हम फाइनली उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे. तो किन किन में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है. और यूकैरियोटिक सेल्स में फंगाई, प्लांट, एनिमल, इन सब में होता है. सो या, so let's now study about a difference between a animal cell and the plant cell. अब एक्चुअली एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं. तो इसमें देख लो, इसके जो सेल है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसमें. इसमें जो सेल ऑर्गेनेल है इनके पास मेम्ब्रेन है. ठीक है. अब इसके बेसिकली चार पांच, आई मीन 5-6 डिफरेंसेस है विच आर वेरी वेरी इजी. तो अब आप पहले तो डायग्राम से याद कर लो 3. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एनिमल सेल में ही सेंट्रोल पाया जाता है जब अपन डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे. सो दैट वाज द फर्स्ट डिफरेंस. नो, अब प्लांट सेल में मिलता है क्लोरोप्लास्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. ऑब्वियसली एनिमल सेल खुद का खाना नहीं बनाता है. और एक है सेल वॉल. तो प्लांट सेल में तो सेल वॉल पाया जाता है, इसलिए ही वो थोड़ा ज़्यादा रिजिड है. और एनिमल सेल कम रिजिड होता है. अपन की जो स्किन है वो सॉफ्ट है ना, लेकिन जो प्लांट है वो थोड़ा रिजिड होता है. क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है. So this were the 3 differences which you can easily learn through a diagram. जो फोर्थ डिफरेंस है वो भी आप डायग्राम से लर्न कर सकते हो. दैट इज अबाउट अ वैक्यूल. तो वैक्यूल, तो ये जो प्लांट सेल होता है ना, इसमें एक बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है. एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है. अब इस वैक्यूल के वजह से ही फिफ्थ डिफरेंस हमें मिला है, वो ये है कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है. लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल के वजह से ये हो जाता है साइड में. ठीक है. सो नाउ आई एम गोना रीड देम. सो एनिमल सेल छोटे होते हैं, प्लांट सेल बड़े होते हैं. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में होता है, इसी के वजह से ये लोग थोड़े टफ होते हैं. अब एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है. एनिमल सेल में प्लास्टिड या फिर ये कह लो क्लोरोप्लास्ट, मीन्स दी सेम. प्लास्टिड का ही टाइप है क्लोरोप्लास्ट. तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड नहीं होता, प्लांट सेल में होता है. वो खुद का ही फूड बना पाते हैं. जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि एनिमल सेल में सेंट्रोइड होता है, प्लांट सेल में नहीं होता. नाउ द लास्ट इज कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो बीच में लाई करता है, लेकिन प्लांट सेल में वो साइड में हो जाता है. क्यों? इस वैक्यूल की वजह से. सो that's all about the difference between an animal cell and the plant cell. It was all about the centroid, cell wall, I just can't, okay, chloroplast, and nucleus की position and vacuole. तो इन पांचों पे ये पॉइंट थे. So now let's revise the second part of the chapter, structural organization of the cell. तो इसमें हम basically वो parts पढ़ने वाले हैं जो हर ही cell में present होता है. So the 3 basic features of a cell are there in every cell, whether it's prokaryotic or eukaryotic, animal cell or a plant cell. That is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. आप nucleus को nucleoid कहोगे in case of prokaryotics. So now let's read about a plasma membrane. So it is the outermost thin and delicate covering that separates the content of the cell from its external environment. Plasma membrane phospholipids का बना हुआ है जो कि flexibility provide करता है. इस flexibility की वजह से plasma membrane food को engulf कर पाता है और उस प्रोसेस को मैं बोलती हूँ एंडोसाइटोसिस. एंडो मतलब अंदर लेना, साइटोसिस मतलब सेल. तो सेल के अंदर फूड को इनगल्फ करना ही कहलाता है एंडोसाइटोसिस. और ये प्रोसेस अमीबा भी प्रैक्टिस करता है बिकॉज ऑफ इट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे मैं बोलती हूँ स्यूडोपोडिया. नाउ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर, क्योंकि सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करता है फॉर एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम दी सेल. ठीक है, which is a most important part of a plasma membrane, transportation, but transportation only of a special or the specific things. It maintain the shape of the cell, obviously outermost covering है in case of animal cell,
and it acts as a mechanical barrier and provides the internal content. It provides the protection against microbe and it gets modified to perform different functions. अब इसका एक example है microvilli. So microvilli is also a plasma membrane which is present inside the intestine of a human body. Actually ये ना absorption को increase कर देता है. जो plasma membrane होता है वो ऐसा प्लेन नहीं होता, उसमें सिर्फ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. क्यों? इसके वजह से सरफेस एरिया बढ़ रहा है और एब्सॉर्प्शन बढ़ती है. So that's the main reason of it. Now, okay, that's all for the plasma membrane. Now, because it's a selectively permeable membrane, obviously it help in transport. ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव. तो एक्टिव वो वाले ट्रांसपोर्ट है जिसमें हम एनर्जी को यूज करते हैं. अगर उसमें मैं एनर्जी को खर्च नहीं कर रही हूँ ट्रांसपोर्ट के दौरान तो उससे मैं बोलती हूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल दो टाइप से होता है, एक होता है डिफ्यूजन, सॉरी, एक होता है डिफ्यूजन एंड एक होता है ऑस्मोसिस. सो डिफ्यूजन का एग्जांपल मैं दूँ तो लंग्स है. अब इन दोनों ही केसेस में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, हाई टू लो. एंड यहाँ पे भी जो सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है क्योंकि ये एक नेचुरल लॉ है. ठीक है, पानी उल्टा नहीं बहेगा. अगर आपके पास एक जार है और एक छोटी सी कटोरी है, दोनों में पानी भरा हुआ है, तो वो ऑब्वियसली भरे हुए जार में से कटोरी की तरफ ही जाएगा और वो दोनों कनेक्टेड है. तो सो दैट्स अ लॉ फॉर नेचर. So everything moves from higher concentration to the lower concentration. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की बात हो रही है, ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है. डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है. इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस इज आल्सो नोन एज डिफ्यूजन. बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. So that's all about a difference between a diffusion and the osmosis. So इसके दो एग्जाम्पल है डिफ्यूजन के, कार्बन डाइऑक्साइड और दी ऑक्सीजन. इसमें यही बोला गया है अगर लंग्स में CO2 कम है और बाहर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा CO2. वैसे ये ऑक्सीजन के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन आता है. एंड सपोज लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और बाहर कम है तो फिर वो लंग्स से बाहर आता है CO2. और इसी तरीके से ही हम गैसेस का इनटेक एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल करते हैं. एंड ऑस्मोसिस की मैं बात करूं तो ये तीन टाइप के हो सकते हैं. एक्चुअली हम तीन टाइप के मूवमेंट देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सॉल्यूशंस. तो वो सॉल्यूशंस के बारे में लेट्स स्टडी नाउ. तो तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपो, आइसो एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. So let's first read this page. It's more explaining. I just messed it up. Okay. तो आपको जो चीज़ें जाननी वो ये है कि सोल्यूशन दो चीज़ों का बना होता है, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मतलब पानी, सल्यूट मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल ही है, नमक. ठीक है. अब अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात कर रही हूँ तो मैं बेसिकली सल्यूट की कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ. तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं, हाइपो, आइसो एंड हाइपर. हाइपर मतलब कि ज़्यादा, हम नहीं बोलते ज़्यादा हाइपर मत हो. तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा उसमें बोलूँगी हाइपर, तो जिसकी कम वो होगा हाइपो. आइसो मतलब कि बराबर. कंसंट्रेशन का मतलब कि सल्यूट की कंसंट्रेशन कम, इसका मतलब कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा. और ऑस्मोसिस में तो हम पानी की ही बात करते हैं. तो ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, अगर मैं उसमें सेल डुबोती हूँ तो पानी सेल के अंदर की तरफ जाएगा. जब वो अंदर की तरफ जाएगा तो मैं उसको बोलूँगी एंडो ऑस्मोसिस और उसमें सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा. इसी का जस्ट ऑपोजिट होगा हाइपर में, क्योंकि हाइपर में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, मतलब कि बाहर पानी की मात्रा कम है तो पानी बाहर निकल कर आएगा जिसके वजह से सेल श्रिंक कर जाएगा और उसे मैं बोलती हूँ एक्सो ऑस्मोसिस. एंड आइसो में अंदर बाहर दोनों जाता है पर साइज सेम रहता है क्योंकि कोई अंतर नहीं पड़ता. अब ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, दिस इज नथिंग बट एन एनर्जी करेंसी. इसके बारे में हम बाद में सेल ऑर्गेनेल में प्रॉपरली पढ़ेंगे. अभी तो हमें यही बताया है कि
एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है. That's all in this page. Now let's talk about the cell wall. So what is cell wall? So basically जो most important part ये है कि cell wall सिर्फ plant cell में होता है. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर वाली कवरिंग होती है एंड ये बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को. और ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है सेलुलोज का. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का बना है, ऐसी सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है. अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो हाइपोटोनिक कंडीशन में, एक्चुअली हाइपोटोनिक कंडीशन मतलब कि सल्यूट कम, मतलब कि सॉल्वेंट ज़्यादा, सॉल्वेंट अंदर जाएगा तो जो सेल है वो फूलेगा. फूलेगा तो उसकी बर्स्टिंग कंडीशन भी आ सकती है. लेकिन क्योंकि सेल वॉल हमें रिजिडिटी प्रोवाइड करता है तो अगर सेल बर्स्ट हो भी जाता है, मतलब होने ही नहीं देता है, क्योंकि सेल वॉल की जो वॉल है वो अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगी. ओके, सो बेसिकली इट परमिट्स फ्रॉम दी बर्स्टिंग. सो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि जो सेल वॉल है वो प्लांट को स्ट्रेंथ देती है टफ से टफ कंडीशन के अंदर जीने की. जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल का वो ये है कि सेल वॉल में ना छोटे 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 होल होते हैं जिन्हें मैं बोलती हूँ पिट्स. अब इन पिट्स की वजह से ना जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है या फिर सेल के अंदर जो लिक्विड होता है ना वो मूव कर पाती है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ. फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये एक सेल है, अब इसके बीच में ये एक होल है, तो यहाँ का जो लिक्विड है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर पा रहा है. ठीक है, सो बेसिकली इसके वजह से इंटरैक्शन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द पिट्स. तो एक तो ये बर्स्टिंग कंडीशन से सेव करता है और इसके पिट्स की वजह से इंटरैक्शन पॉसिबल हो पाता है. अब ये तो था पूरा सेल वॉल के बारे में. अब एक टर्म आता है प्लाज्मोलाइसिस. तो प्लाज्मोलाइसिस इज नथिंग बट अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब कि इसमें सल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट कम. सॉल्वेंट क्योंकि कम है तो सेल के अंदर से पानी निकलेगा. पानी निकलेगा तो सेल क्या है? श्रिंक होगी. ठीक है, सेल क्या है? श्रिंक होगी और वो सेल वॉल से दूर होना स्टार्ट हो जाएगी. इसी प्रोसेस को मैं बोलती हूँ प्लाज्मोलिसिस. सो बेसिकली मैं ये आपको ये बोल सकती हूँ कि एक्सोऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस एक ही बात है, एक ही प्रोसेस के दो अलग अलग नाम है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी, आई थिंक साइटोप्लाज्म रह गया. ओके ओके, साइटोप्लाज्म इसके बाद है. अब न्यूक्लियस की बात आती है. सो न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, ये सेल का ब्रेन है. इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इन यूकेरियोटिक्स. ठीक है, इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, इसमें लिक्विड भी होता है. सो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स हैं जिन्हें मैं बोलती हूँ पोर्स. और इसका खुद का एक लिक्विड भी है जिसे मैं बोलती हूँ न्यूक्लियोप्लाज्मा. ठीक है, so nucleoplasm is the liquid, nucleopore is the whole, and nuclear envelope basically it has the nuclear membrane, and this is known as the brain of the cell. This is very 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 important. ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोलस है ना इसमें दो चीजें होती हैं. अब आप देख ही पा रहे हो ये पर्पल कलर का न्यूक्लियस है, इसमें दो चीजें, एक तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे मैं बोलती हूँ क्रोमैटिन मटेरियल, और ये डार्क पर्पल कलर इसे मैं बोलती हूँ न्यूक्लियोलस. So nucleus is the brain of the cell and nucleolus is the brain of the nucleus. I mean nucleolus is the brain of the nucleus. ठीक है, so न्यूक्लियोलस क्या करता है ना, आपको बस इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पे राइबोसोम्स की फैक्ट्री है एंड राइबोसोम्स फर्दर क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. सो राइबोसोम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी फैक्ट्री कहाँ पे है? न्यूक्लियोलस. So nucleolus is the factory of ribosome. What is chromatin? Chromatin एक thread like structures हैं जो कि बहुत सारे मिलके क्रोमोसोम बनते हैं. लेकिन ये क्रोमोसोम या फिर बहुत सारे कब मिलते हैं? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है. ठीक है, नाउ अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना इसके पास भी दो चीजें हैं, जैसे कि ये जो न्यूक्लियस है अपना, ठीक है, ये दो चीजों का बना हुआ है, एक न्यूक्लियोलस और एक क्रोमोसोम. बेसिकली क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमोसोम. अब ये जो क्रोमोसोम है ये फिर दो चीजों का बना हुआ है, एक डीएनए और एक प्रोटीन.
ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ना, इसका सिंथेसिस होता है आरएनए में। आरएनए एक न्यूक्लियस का पार्ट है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीरोबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के अंदर एक्चुअली हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डीएनए में एक फंक्शनल सेगमेंट होता है जिसे मैं बोलती हूँ जीन्स। इस जीन्स के अंदर ही अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। सो so chromosomes have two things, DNA and protein. प्रोटीन का सिंथेसिस होता है आरएनए में, एंड डीएनए हैव अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द जीन्स। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो बहुत इजी है एक्चुअली इसके पास, क्योंकि डीएनए है, इसके पास एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। सो इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन एंड इट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर चाइल्ड। ठीक है। तो अब ये दो फंक्शन तो इंटरकनेक्टेड हो गए, और बाकी के दो फंक्शन भी एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है। न्यूक्लियस गवर्न्स और डायरेक्ट्स द केमिकल एक्टिविटीज एंड इट कंट्रोल और डायरेक्ट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सो केमिकल, क्योंकि ये ब्रेन है सेल का, तो ऑब्वियसली जितनी भी केमिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो न्यूक्लियस गवर्न करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक का मतलब होता है वो एक्टिविटी जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो। ठीक है। Now let's talk about the cytoplasm. Cytoplasm or protoplasm. These are the two terms which people or students get confused about. तो I will tell you about this. पहले साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। So cytoplasm is nothing. It's the fluid content inside the plasma membrane or the cell. ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है साइटोसोल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, सेल वॉल सेलुलोज, साइटोप्लाज्म साइटोसोल। तो ये साइटोसोल का बना हुआ है। अब इसके क्या क्या फंक्शन है? अब देखो इसमें ना हमें फंक्शंस याद रखने हैं, स्ट्रक्चर याद रखना है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में याद रखनी है। जो आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो दिस इज एन इजी चैप्टर। बट इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है। वो इसके बेसिक फंक्शन से रिलेट नहीं होगा। सो ये तो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनेल। ऑब्वियसली ये एक्चुअली मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप और आपका फ्रेंड है, आप बहुत ही लंबे समुंदर में हो, मतलब लंबा क्या, आप बहुत ही समुंदर में हो, आसपास सिर्फ पानी ही पानी है। तो अगर आपको एक दूसरे के पास कुछ पहुंचाना है या फिर कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो ऑब्वियसली आप लोगों का मीडियम क्या है? पानी है। So cytoplasm act as a medium to exchange the material between the cell organelle. अब ये बाकी के दो आपको याद रखने हैं कि एक स्टोर हाउस है फॉर अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन, तो इन सबको ये स्टोर कर सकता है। एंड इट एक्ट एज अ साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलिसिस। अब अब ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक ये पहला पॉइंट इज एक्चुअली दी सपोर्टिंग द सेकंड पॉइंट। तो ये जो पहला नोट है वो ये कह रहा है कि अगर मैं किसी भी सेल को स्टेन करती हूँ, स्टेन मतलब कि किसी कलर से रिएक्ट करवा, किसी सोल्यूशन से रिएक्ट करवा के उसको कलर करती हूँ। ठीक है, मतलब कि उसको कलर्ड कर देती हूँ। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल अलग अलग केमिकल एक्टिविटी करेंगे, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे और अलग अलग कलर अपीयर होंगे, जिसके वजह से उनको पढ़ना, उनको देखना, समझना ईजी हो जाता है। तो वो कौन कौन से सोल्यूशन है जिसके वजह से हम सेल को स्टेन कर पाते हैं? वो तीन है। आयोडीन जिससे येलो कलर होता है, सेफ्रेनिन एंड दी मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू से ब्लू कलर होता है एंड सेफ्रेनिन से पर्पल कलर होता है। ठीक है। सो आयोडीन सोल्यूशन, सेफ्रेनिन सोल्यूशन एंड मिथाइलिन ब्लू आर द सोल्यूशंस which can be used to stain the cell. Now, the most important doubtful question is कि protoplasm is also a liquid of the cell. Cytoplasm is also the liquid of the cell. So basically, protoplasm is also a liquid, but the liquid involving the liquid inside the cell and liquid inside the nucleus. तो फॉर एग्जाम्पल आपके मॉम के दो बच्चे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, दोनों ही डॉटर है। तो इन्हें मैं क्या बोलूंगी? इनको मैं बोलूंगी डॉटर्स। ठीक है। तो सिमिलरली एक सेल है, उसका प्रोटोप्लाज्म है। अब वो प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। ठीक है। सो नाउ लेट्स रिवाइज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज सेल ऑर्गेनेल।
So cell organelle are the membrane-bound structure within the cell, which is known as a cell organelle, and they carry out crucial function of the cell. ठीक है? Now we are going to cover the 6 cell organelle in this chapter. So let's revise them. तो हम इनमें क्या करेंगे, हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन के बारे में लर्न करेंगे. व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप 4 फंक्शन याद करो, क्योंकि हमें 4 या 3 फंक्शन ही दिए हैं हर चीज़ के. तो फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारी एनसीईआरटी में 7 फंक्शन दिए हुए हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप 4 ही लर्न कर लो, बट उन चारों को प्रॉपरली लर्न कर लो. ठीक है. सो व्हाट इज दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये प्रोटीन एंड फैट बनाता है. ठीक है. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सिस्टर्ने, वेसल्स एंड ट्यूब्यूल. सिस्टर्ने ऐसा दिखता है, वेसल ऐसा एंड ट्यूब्यूल ऐसा. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि 2 चीज़ों का मैन्युफैक्चर करती है, एक प्रोटीन और एक फैट, तो ऑब्वियसली दोनों की मशीनरी अलग अलग है. तो पहली मशीनरी को मैं बोलूँगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब रफ वाले में राइबोसोम्स होते हैं उसकी सरफेस पे, इसलिए उसको मैं कहती हूँ रफ. स्मूथ वाले पे नहीं होते. ये जो रफ होते हैं, अब आप ही बताओ इन तीनों में से किस वाले का बनेगा रफ? ऑब्वियसली इसके सर्फेसिस तो देखो स्मूथ है, ये स्मूथ है, इसमें छोटे छोटे जो डॉट है, तो ये वाला रफ है. तो सिस्टर्मे का बना होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वेसल्स का एंड ट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है. तो रफ वन एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंड स्मूथ वन फैट सिंथेसिस करता है. ठीक है. नाउ लेट्स कम ऑन दी फंक्शंस. तो एक्चुअली जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही सेल के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटीन मिल पाता है. ठीक है. अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये फैट मॉलिक्यूल या लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करता है. अब ये जो प्रोटीन्स और फैट्स हैं, ये काम आते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के. So building the cell membrane, the process of building the cell membrane is known as the membrane biogenesis. Learn this word. So membrane biogenesis is nothing. It is the process of building the cell membrane with the help of lipids and protein which are manufactured inside the endoplasmic reticulum. अब सारे के सारे फैट्स और प्रोटीन तो काम नहीं आ जाएंगे ना सेल मेम्ब्रेन में. कुछ एंजाइम्स की तरह एक्ट करेंगे और कुछ हॉर्मोन्स की तरह एक्ट करेंगे. जो बहुत ही स्पेशल फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है. लेकिन सारे सेल्स के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, लिवर सेल के. तो जो लिवर सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है. इसलिए मैं बोलती हूँ, इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि आप ज़्यादा अल्कोहल पियोगे तो आपके लंग सॉरी वो सिगरेट के लिए होता है, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल पियोगे तो आपका लिवर खराब हो जाएगा, और ज़्यादा सिगरेट पियोगे तो लंग्स खराब हो जाता है. ठीक है. सो दैट्स ऑल. अब ये जो बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं, दिस आर कम्प्लीटली रटिफिकेशन, देयर इज नथिंग आई कैन एक्सप्लेन. सो या दैट्स ऑल फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लर्न दीज मोर 4 पॉइंट और बाकी की वीडियो पॉज करके पढ़ लो. Now the second cell organelle is Golgi apparatus. This is nothing. This is a transportation unit. ये कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था यूजिंग अ ब्लैक रिएक्शन मेथड. ब्लैक रिएक्शन मेथड में एक्चुअली उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूज़ किया था. सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से उन्होंने सेल को स्टेन किया था और उन्होंने गोल्गी अपैरेटस को डिस्क्राइब किया था या फिर उनको एग्जामिन किया था. ठीक है. अभी जो गोल्गी अपैरेटस है, इसका ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है पूरा कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें वेसल्स होती हैं, लार्ज वैक्यूल है, सिस्टर्ने है. ठीक है. ये अब आपको लर्न ही करना है. जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो गोल्गी अपैरेटस है ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होता है. ठीक है. तो ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अराइज होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो स्मूथ पार्ट है उससे अराइज होता है ये गोल्गी अपैरेटस. तो इस लाइन का मतलब बस ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद आता है गोल्गी अपैरेटस. ऑब्वियसली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैन्युफैक्चरिंग हुई तो उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा. सो
जो भी सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो पैक होता है और डिस्पैच होता है गोल्गी अपैरेटस के थ्रू, और अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को वो मिलता है। इसी गोल्गी अपैरेटस को हम डिक्टोसोम्स भी कहते हैं प्लांट सेल में। सो गोल्गी अपैरेटस का ही दूसरा नाम है डिक्टोसोम, जो कि प्लांट सेल में हम इसको बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? इट्स टू मॉडिफाई पैक प्रोडक्ट। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट कर सकता है, एंड इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला पॉइंट तो पिछले वाले से ही कनेक्टेड है। अगर अगर मैं प्रोटीन एंड फैट यूज कर रही हूँ फॉर मेकिंग दी सेल मेम्ब्रेन, जिस प्रोसेस को मैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहती हूँ, तो बना तो दिया, लेकिन उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गोल्गी अपैरेटस। तो एक्चुअली गोल्गी अपैरेटस भी इन्वॉल्व होता है फॉर मेकिंग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सेल ऑर्गेनेल, दैट इज लाइसोसोम। सो लाइसोसोम्स के एक्चुअली चार नाम हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन। सो बेसिकली ये गार्बेज है, ये गार्बेज डस्टबिन है, ठीक है, गार्बेज डस्टबिन। अब ये गार्बेज डस्टबिन है, सो इट्स अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ दी सेल। तो अब ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों है? क्योंकि इस लाइसोसोम में ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से जो भी खराब चीज़ें होती हैं या फिर जो फॉरेन माइक्रोब होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस होता है, इसको ये खा लेती है और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू डिसॉल्व कर देती है, जिसकी वजह से जो अपना सेल होता है ना वो क्लीन क्लीन रहता है। सो these enzymes are made by a rough endoplasmic reticulum, ठीक है। अब ये जो लाइसोसोम्स है ना, इसे मैं सुसाइडल बैग भी कहती हूँ। इसे मैं सुसाइडल बैग क्यों कहती हूँ? कि फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल है, ठीक है। अब इस सेल में मेरे पास लाइसोसोम्स है। अगर मेरा ये सेल गलती से काम करना बंद कर देता है या फिर ये डैमेज हो जाता है, तो हो सकता है जो लाइसोसोम है ये फूट जाए, और फूटने के बाद इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बाहर आ जाएंगे और ये खुद के ही सेल को खा जाएगा। इसलिए मैं इसको बोलती हूँ सुसाइडल बैग। मतलब एनसीईआरटी में लिखा है कि इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। सुसाइड मतलब खुद ही को ही मार देना। तो ये लाइसोसोम ने खुद के ही सेल को मार दिया, ठीक है। सो दैट्स वाई इसे मैं सुसाइडल बैग कहती हूँ। आपको जो लर्न करना वो ये है कि ये आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो अपने रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। So functions are very very easy. So they help to keep the cell clean by digesting foreign material and by digesting the cell organelles जो खराब हो चुके हैं। इसलिए इसको मैं सेलुलर हाउसकीपर या स्कैवेंजर्स भी बोल सकती हूँ। हाउसकीपर आर दोस्त जो कि हाउस को क्लीन रखते हैं, तो सेलुलर हाउसकीपर आर दोस्त जो कि सेल को क्लीन रखते हैं। So ribosome is a cellular housekeeper or the scavenger or the waste disposal system or the societal bag. Now, अब ये डाइजेस्ट कैसे करते हैं? अपन लोग जब फूड खाते हैं तो उसको अपन अपने माउथ में ब्रेक करते हैं ना, तभी तो वो डाइजेस्ट हो पाता है। सिमिलरली ये भी ब्रेक करता है और उसके बाद अपने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब इसका एक काम और है। अब आप एक बताओ, एक बहुत गरीब है जिसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, तो उसके पास अगर डस्टबिन में खाना होगा तो वो उठा के खा सकता है, राइट। सिमिलरली अगर हमारे सेल को बहुत भूख लग रही है, वो स्टार्वेशन में है, तो जो लाइसोसोम्स में फूड है ना, वो सेल को दे देता है फॉर एनर्जी। Okay, so that was the function about the lysosome. Our fourth cell organelle is mitochondria. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. This is very important. So mitochondria को डिस्कवर किया था कोलिकर ने, ठीक है। तो आप MK से याद रख सकते हो। I don't know, but I remember it by this MK. So mitochondria were first discovered by the Kolliker. It is a double membrane bounded cell organelle, and it's अब इसके ना दो मेम्ब्रेन होते हैं, इसके पास दो मेम्ब्रेन होते हैं। तो जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है वो देखो ये पोरस है, इसमें ये पोर्स हैं, और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है ये डीपली होता है। तो ये देखो बहुत डीप है, एंड बहुत ही ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे मैं क्रिस्टे ही बोलती हूँ, क्रिस्टे। सो
So mitochondria was observed by Kolliker. It's a double membrane bounded cell organelle and पहला जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है उसमें बहुत सारे होल होते हैं और जो अंदर वाला होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है. ठीक है. अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको मैं बोलती हूँ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग. सेल्फ रेप्लिकेटिंग का दूसरा नाम होता है सेमी ऑटोनॉमस एंड इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? नर्व सेल. और किसी भी सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. सो ये पावर हाउस है सेल का. ये एक्चुअली किस यूनिट में अपन को एनर्जी देता है? फॉर एग्जाम्पल अपने अपने करंट किस यूनिट पावर में आता है? वॉट. या फिर हम किसी भी चीज को कैसे खरीद पाते हैं? रुपीस और पैसे से. सिमिलरली mitochondria is the powerhouse of the cell and it provides energy in the form of ATP molecule. So ATP molecule को actually मैं energy currency भी बोल सकती हूँ. ATP का full form है adenosine triphosphate. Now, whenever the cell require energy, ATP molecule break down, generating energy to be used by body in order to make the chemical compound and perform the mechanical work. So basically ये break down हो जाता है. ये जो ATP molecule है ये break down हो जाता है. ये बहुत ही important point है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं. अब क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम है तो ये खुद का प्रोटीन भी बना सकता है. एंड ये चौथा पॉइंट आपको लर्न करना है. दिस प्रोवाइड इंटरमीडिएट फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल लाइक फैटी एसिड्स, स्टीरॉइड एंड अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा. तो इनकी केमिकल रिएक्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है. अब माइटोकॉन्ड्रिया और जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड, उसमें दो सिमिलैरिटीज हैं. दोनों ही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और दोनों के ही पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है. ठीक है. So now let's talk about plastid. So actually plastid के अंदर के जो लिक्विड होता है उसको मैं बोलती हूँ स्ट्रोमा. तो हाँ, so these are found only in the plant cell. Obviously animal cell खुद का खाना तो नहीं बना पाता. So plastid सिर्फ plant cell में होते हैं एंड इनके पास बहुत ही सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं. ये देखो ये जो है ना ये बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्स हैं जो कि स्टैक्ड एक दूसरे के ऊपर. तो ये जो बंडल है वो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है. उस लिक्विड को मैं बोलती हूँ स्ट्रोमा. अब ये जो प्लास्टिड है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ सिमिलैरिटीज रखता है. दोनों ही डबल लेयर्ड है और दोनों के ही पास खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम है. तो ये भी खुद का ही प्रोटीन बना पाता है. अब प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं और इसके अलग अलग टाइप के वजह से ही इसके जो फंक्शन है वो भी 3 है. अब ये जो क्रोमोप्लास्ट, chloroplast, leucoplast, these are the 3 type of plastids. Chromoplast is responsible for providing colors to fruits and flowers. Chloroplast is responsible for providing color to leaf. So basically green pigment provide करता है और ये जो green pigment है इसे मैं क्या बोलती हूँ? Chlorophyll. ठीक है. ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है. ये जो क्लोरोप्लास्ट है सेमी ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ रिप्लिकेटिंग. So basically it is very important for the photosynthesis in plant. इसी के ही इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो प्लांट है वो सनलाइट को एब्सॉर्ब कर पाता है और फोटोसिंथेसिस कर पाता है. अब आप इसको याद कैसे करोगे? क्रोमो और क्लोरो तो बहुत कंफ्यूजिंग है. तो देखो आगे का CH तो कॉमन है तो जहाँ पे पहले L आ गया ना दैट इज फॉर लीफ. तो chloroplast is for green pigment and chromoplast is for the flowers and fruits. So chromoplast are the colored pigment. They impart color to flowers and fruits. तो क्रोमो में जैसे क्लोरोफिल होता है विच इज नोन एज अ ग्रीन पिगमेंट, ऐसे क्रोमोप्लास्ट में कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है. कैरोटेनॉइड पिगमेंट इज बेसिकली अ कलर्ड पिगमेंट. इट कैन बी ब्राइट येलो, रेड, पर्पल, ऑरेंज, व्हाइट और एनीथिंग. Now, what is this leucoplast? So leucoplast is basically a colorless or a white colored plastid and its main function is to store the material. ठीक है. और ये प्लांट्स में ही होता है. तो प्लांट में अगर मटेरियल स्टोर करना है, ये लीफ का ग्रीन कलर या फ्लावर्स का कलर या फ्रूट का कलर, ये सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लास्टिड.
So our last topic of this chapter is vacuole, जिसके बारे में आपको एक चीज़ तो ऑलरेडी पता है कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली अपना स्टोरेज है, ये अपना स्टोरेज रूम है। So vacuole is nothing but a storage room. सो एनिमल्स में ये क्या क्या स्टोर कर सकता है, वाटर, न्यूट्रिएंट और टाइम टाइम पे वेस्ट भी स्टोर कर पाता है और फिर इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। नाउ प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और ये वाटर को स्टोर कर सकता है एंड ये प्लांट को रिजिड भी रखता है। ऑब्वियसली प्लांट का जो 50 to 90% पार्ट है वो वैक्यूल ने ही कवर किया हुआ है, तो प्लांट को जो रिजिडिटी या शेप दे रहा है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन प्ले करता है, वैक्यूल प्ले करता है। अब वैक्यूल के मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। जैसे सेल के मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, ऐसी वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये थोड़ा अलग था इसलिए मैंने आपको अलग से बताया भी, ये आप लर्न कर लेना। अब इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, ये एक स्टोरेज रूम है। सो दीज आर द सेल सैप। सेल सैप मतलब कि एक एक सैप जैसा है, एक बोरी जैसा है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है जो कि प्लांट्स को टर्जिडिटी या फिर रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर, प्रोटीन्स ये स्टोर होते हैं वैक्यूल में। ऑब्वियसली स्टोर रूम है तो ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है। ये कंज्यूम्ड फूड आइटम को स्टोर करके रखता है अमीबा में, उसे हम स्पेशली बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो ये नाम से बता रहा है कि फूड वैक्यूल आर द वैक्यूल्स विच स्टोर फूड। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल्स एक्सपेलिंग के भी काम आता है। ऑब्वियसली ये वेस्ट को भी स्टोर करके रख रहा है, तो जो भी एक्सेसिव वाटर या वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के भी काम आता है ये वैक्यूल। So vacuole is basically a storage room. So here we complete our chapter. So we read about the 6 cell organelle. So एक एक एक्चुअली सेल सेल का स्ट्रक्चर अपन निकाल लेते हैं। इसको मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ, यहीं पे मैं बता देती हूँ अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ा था, दिस इज न्यूक्लियस। इसके बाहर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन एंड फैट। इसके बाहर अच्छा इसके बाहर होता है गोल्गी अपैरेटस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। फिर छोटे 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 होते हैं लाइजोसोम्स विच आर एक्चुअली द हाउस कीपर, सेलुलर हाउस कीपर, ये सेल को क्लीन रखते हैं। Then we talked about mitochondria, that's the powerhouse of the cell. Plastid, it is only present in the plants and this is responsible for the pigment and the storage sometime. And last is the vacuole, which is our storage room. So that's all for this chapter. I hope you learned a lot. So thank you for being with me in this revision session, and do subscribe to our channel and like the video if you learned from it. Thank you.